Namaskar. Good morning, everybody. Thank you so much to all the friends from media for coming here for this press conference for Vibrant BidCon 2025. This is an international level exhibition which is going to take place from 13th to 16th of April at Yashobhumi Convention Center in New Delhi. Today we have our entire team here. Capexil, Mr. Ramesh Mittal is the president of Capexil. We have Capexil team, Mr. Nilesh Shetparia, Senior Vice Chairman, Capexil Ceramic Panel, Mr. Narendra Sangat, Committee Member for the Western Region, Mr. Harpal Singh ji, for Secretary Capexil, my colleague here, Mr. Vijay Agara, who is a Director at Vibrant BidCon, and myself, Vishal Acharya. I am also from Vibrant BidCon. So Vibrant BidCon, I'll just give a brief, 2 minutes, and then we will have Capexil introduce themselves, and then we can open the floor for question answer. वाइब्रेंट बिलकॉन में जो हमारा प्रयास है, हम लोग एक वन नेशन वन एक्सपो की तरफ हमारा एक सोच है कि बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर जो हमारा इतना बड़ा है, इसमें इतना पोटेंशियल है, इंडिया के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है ग्लोबल ट्रेड में, तो क्यों ना सारे एफर्ट्स को कॉन्सेंट्रेट करके सारे सेक्टर्स को एक जगह पे लाके वी कैन ब्रिंग एवरीबडी ऑन वन प्लेटफॉर्म. हमारे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सिरामिक टाइल, सैनिटरी, मार्बल, ग्रेनाइट, स्टोन, प्लाईवुड, लेमिनेट, हार्डवेयर, तो ये सबको एक जगह पे लाके हम सारे बायर्स को एक जगह पे बुलाए, बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली. तो एग्जीबिटर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, बायर्स के लिए भी बहुत अच्छा है. बायर्स को चॉइस मिलेगा, एग्जीबिटर्स फोकस करके दे कैन सेल, वी कैन क्रिएट अ मार्केट प्लेस. तो ये इसी प्रयास में हम आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे इस प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा करें, तो हम इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बना सकें. हमारा एम ये है कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में ऐसा हो जाए कि जितने भी बायर्स हैं, फॉरेन बायर्स हो गए, डोमेस्टिक बायर, उनका एक कैलेंडर फिक्स हो जाए कि साल में ये 5 दिन है, यहाँ पे भारत में जाना है, हमको बिल्डिंग मटेरियल में कुछ भी खरीदना है, तो ये हमारे कैलेंडर में फिक्स होना चाहिए. वो इनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट बढ़ा सके, कैसे उनको डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके. तो ये हमारा एक छोटा प्रयास है, तो विच इज़ वाई वी हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव. Thank you so much. I'd like to invite Shri Ramesh Mittal ji to speak a few words about Capexil और Capexil का क्या रोल है इस प्रोजेक्ट में. Thank you, Vishal ji. Well, good morning, friends. Capexil was established in 1958 and is functioning under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. We are an export promotion council looking after. We are an export promotion council looking after the exports of 16 different product panels, which consists of 1,300 plus HSM code items, which is a vast area that we cover. It includes mineral sector and also non-mineral sector, and among mineral sector we have these raw minerals plus granites, marbles, stones, processed minerals, and in the other sector it is all tiles, glass, cement, and paint, and many other such products, plus of course paper, books, many other things. So in all, these are 16 different products that we look after exports of. Idea of Vibrant BidCon was developed as the government wants that there should be one nation, one expo, or one nation, one big exhibition, which means if we have nearly 7 product panels which are associated with the construction industry. So the idea was that an exhibition is started which is both for the domestic as well as international buyers, and slowly once it picks up the name worldwide, then buyers or interested people will be coming from abroad also regularly once it picks up. So this was the whole idea, and so it is, we are just following as per the guidelines of the government that there should be large scale exhibitions coming up in our country, so that we also expose, like there are expos worldwide which are well known. So slowly we will also have maybe half a dozen or 10 expos of different products, so that they become popular
worldwide. So that was the whole idea. Why the products that we currently, I must say, related to building construction or building materials, we have about $13 billion exports at the moment. And by 2030, we expect to raise it to $30 billion and $18 billion. So slowly, the idea behind it is that we are able to have more export. Also, we are able to sell things much more in India as well. And you see, the purpose of the idea behind Vibrant Bitcoin, the other idea was that if whatever we spend on the Vibrant Bitcoin today, perhaps we'll be able to do maybe 20 times more export every year. And so, likewise, things will, I will say, bring in a lot of foreign exchange for the country. India's reputation will also be strengthened because we are able to produce now high quality stuff in all fields. So therefore, this is another area that we want to popularize ourselves. And I mean, say, this is, the idea behind it is that we are looking at Viksit Bharat by 2047, and in terms of making it a developed India, we all have to contribute together and make sure that we develop in every walk of life. So we will be, through these events, we will be creating networking and collaboration opportunities between domestic manufacturers and international buyers, between domestic manufacturers and distributors, in India, domestic manufacturers and the consumers who would like to see new products, the consumers in it, domestic consumers, so that they are also impressed and they have some idea on whatever, if they want to build any house or building or anything, they have all that to carry forward. So, of course, finally we'll be ending up in earning potential foreign exchange. That's what we are looking at. So this is the whole idea behind this event, and we need your cooperation. Honorable Shri Piyush Goyal ji, Minister of Commerce and Industry, has consented to inaugurate this event on Sunday morning at 9:15. So we would like to invite all of you there so that you are able to cover up that event as well. Thank you all. Hello. First of all, thank you to all of press to coming here. Myself Vijay, I am the director of Vibrant Bilcon. ये जो एक्सपो है वो 13 से 16 यशोभूमि में है। जिसे रमेश साहब ने बताया कि पीयूष गोयल साहब इसका इनॉग्रेट कर रहे हैं सुबह 9:15 को। तो 13 से 16 यशोभूमि सेंटर में द्वारिका दिल्ली में ये एग्जीबिशन है। थैंक यू। I invite Shri Dinesh Shetkaria from Capexil, Senior Vice Chairman. वो Capexil से भी है, he wears two hats. He is from Capexil as well और खुद का इंडस्ट्री भी है. So he is also been supporting us. So I'd like to speak, invite him to speak a few words. नमस्कार। आज की ये मीटिंग में सब पत्रकार मित्र और मीडिया के सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। ये एग्जीबिशन 13 से 16 यशोभूमि में है। मेन जो एग्जीबिशन में आफ्टर ऑल क्या मिलेगा, ये जो महाकुंभ होने जा रहा है उसमें से क्या कंट्री को क्या फायदा होगा, इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा और लोगों को क्या फायदा होगा। तो खास करके ये 80 से ज्यादा कंट्री से बाहर आ रहे हैं, हर एक सेक्टर से बाहर हम ला रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजर है कैपेक्सिल की पूरी टीम, भारत सरकार का भी सहयोग रहा है। एम्बेसी जो है भारत सरकार की वो भी काफी सपोर्ट करके 6 बायर को हम ला रहे हैं। और वो बायर वो है जो दूसरी कंट्री से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। मोर देन 50% बायर ऐसा है जो इंडिया से आज तक इंपोर्ट ये प्रोडक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसे बायर को ला रहे हैं। तो ये होगा कि जो नया बायर हो इंडिया से अपना माल लेके जाएगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। वरना एबीसी कंपनी से ले रहे हैं और से
XYZ कंपनी से लगे, उससे कोई हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। तो मेन आइडिया ये भी है कि नए बायर हम लेके आए। दूसरा कि कोई भी एग्जीबिटर जब अलग अलग कंट्री में जाते हैं, एज अ मैन्युफैक्चरर मैं भी एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मैं अलग अलग कंट्री में जाऊँगा तो मेरी 10 टीम अगर पूरे साल दुनिया भर में घूमेंगे और करोड़ों रुपया खर्चा करके जो काम नहीं होगा। सपोज एग्जाम्पल, अभी रशिया में एग्जीबिशन था तो करीबन 50 मीटर स्टॉल का आपको एक्सपेंस करना है तो 50 लाख का खर्चा होता है, और वो पूरा 50 लाख है वो दूसरी कंट्री में चला जाता है, वो हमारी कंट्री में एक भी रुपया नहीं रहता है। यहाँ पे रिवर्स होता है कि हमारे देश के अंदर जब एग्जीबिशन बनता है तो यहाँ पे जो भी वर्कर होंगे, जो स्टॉल डिजाइन करेंगे, जो भी कंपनियां होगी, होटल होंगी, टैक्सी होगी, लोग यहाँ से इंडिया आएंगे तो परचेसिंग करके जाएंगे। तो ये भी है कि भी वो फॉरेन से जो बाहर आ रहे हैं उसका जो भी खर्चा होगा वो हमारी कंट्री के लिए होगा, और स्टॉल डेकोरेशन के लिए भी वो जो पैसा है वो हमारे देश में रहेगा। सबसे बड़ा है कि जो एक कंपनी को अगर एक कंट्री में कोई एग्जीबिशन करते हैं तो सिर्फ रशिया में रशिया के ही बाहर आएंगे, यहाँ पे एक ही जगह पे पूरी दुनिया से बाहर आएंगे, तो मतलब एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करके हम पूरा वर्ल्ड का मार्केट ले सकते हैं कम समय में। तो एग्जीबिटर को भी फायदा हुआ, देश के लिए भी फायदा हुआ। और तीसरा, जो भी खास करके मैं इनवाइट करता हूँ, जो भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर है, बिल्डर है, आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिजाइनर है, ये एक्सपो के अंदर काफी ऐसी नई प्रोडक्ट होगी कि जो प्रोडक्ट का नई इनोवेटिव प्रोडक्ट होगी तो एक जगह पे पूरी बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए एक जगह पे अपने प्रोडक्ट को देखने को मिलेगा। तो ये गोल्डन चांस है विजिटर के लिए भी। तो मैं आपके माध्यम से पूरी देश की जनता को आमंत्रित करता हूँ जो ये कंस्ट्रक्शन लाइन में है, बिल्डिंग मटेरियल में है, ये एक्सपो का मुलाकात ले और जो नया ट्रेंड चल रहा है उसके साथ वो जुड़े। अपना जो घर है, सपनों का घर, उसको कैसे सजाया जाए, उसकी प्रोडक्ट एक ही जगह पे उसको दिखने का मिलेगा। थैंक यू। अच्छा, नीलेश भाई ने जैसे बताया कि पूरा ये जो महाकुंभ कर रहे हैं, जो भी बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री का जो कंस्ट्रक्शन में, वहाँ पे आर्किटेक्ट्स है, बिल्डर है, इंटीरियर है, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सभी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे वो पूरा एक ही सेक्टर की सभी कंपनी को हम वहाँ पे एड्रेस कर सकें। अच्छा, अभी कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि जो आपने जो बिल्डकन का जो करने जा रहे हैं, दिस इज द सेकंड टाइम, थर्ड टाइम? ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम। दिस इज द फर्स्ट टाइम बिल्कुल वाइब्रेंट बिल्कुल फर्स्ट। वाइब्रेंट। क्वेश्चन ये है, जो मतलब बायर सेलर्स मीट होंगे तो उसमें हमारा देश में इन्वेस्टमेंट होगा, और दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सपोर्ट फिगर आपने कुछ बताया, कितने करोड़ रुपए? 13 billion. $13 billion. 13 में, तो इट विल बी अप By to 18 billion by 2030 in 5 years. 2030 2030. 2030। हाँ, 2030 में तक 18 बिलियन तो हम एनविसेज कर ही रहे हैं। हाँ, हाँ। और अगर जब इवेंट्स करेंगे ऐसे तो और अधिक बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए अभी मैं बताता हूँ, रशिया से एक फुल डेलीगेशन आ रहा है, बहामास से एक फुल डेलीगेशन आ रहा है, मोर देन 60 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, और बड़ा इंटरेस्ट जब उनको लगेगा कि यहाँ अंडर वन रूफ बहुत चीजें देखने को मिल रही हैं, धीरे धीरे एक्सपेंड होगा। देखिए, मान लो इस बार n नंबर ऑफ एग्जीबिटर्स हैं, अगली बार वो प्लस 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 होते जाएंगे, और ऐसे ही फॉरेन से भी आने वाले प्लस प्लस होंगे। तो लॉन्ग टर्म में हम लोग बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। Okay, thank you very much. The second question is what you said right now. It is up to 2030 18 billion. 18 billion. 18 billion euros. Does it mean or is it export figure or it will be? Only export figure we are talking about, sir. Only export figure, and that too. What? Those 7 products that Capexel handled. But what we are doing is, we are not confining ourselves to only Capexel products. अब आप देखिए, मान लो टूटियां हैं बाथरूम की या और चीजें हैं, ये भी एग्जीबिशन में है, हार्डवेयर कैपेक्सिल के अंदर नहीं है ये, लेकिन आइडिया
सारा इसके पीछे ये चल रहा है कि धीरे धीरे चाहे वो जेसीबी मशीन्स हो, चाहे कंस्ट्रक्शन में जो जो चीजें यूज होती हैं, वो हर चीज की एग्जीबिशन ये बनेगी और यहाँ धीरे धीरे हम उस हिसाब पे ले जाएंगे कि ये मेगा इवेंट होगा। हाँ, वर्ल्ड वाइड नोन मेगा इवेंट बनाने का बहुत बड़ा इंटरेस्ट, उसी हिसाब से ये नींव रखी गई है। फर्स्ट as far as the buyer sellers meet, it will be the significant for the investment also. यस ऑफ कोर्स, व्हेन दे सी के कोई, देखिए बायर्स भी आएंगे, आपके कॉम्पिटिटर कंट्रीज भी आएंगे, मैं ये बोलता हूँ हमेशा आते हैं, वो लोग को फिर ये लगेगा यहाँ लेबर चीपर है या ये चीज अच्छी है या ये बेटर है, ये क्वालिटी है, तो इन्वेस्टमेंट्स भी अपने आप आएंगी। देखिए ये सब चीजें मल्टी प्राउंड होती हैं, एक रास्ता, कोई एक ही रास्ता नहीं खुलता है, अभी चीजें खुल जाती हैं। So my टोटल डेलीगेट्स कितने आ रहे हैं? आई एम सॉरी, डेलीगेट्स कितने आ रहे हैं? 500 प्लस फॉरेन से, 70 कंट्रीज से जी। हाँ जी, 500 प्लस। अभी कितना बड़ा बाजार मानते हैं इसको? लेडी मटेरियल का अभी कितना बड़ा बाजार है और आगे कितना स्टार्टिंग संभावना है? विदेश में, नहीं अभी अपने यहाँ कंट्री में, अपने यहाँ कंट्री में हम इसको मानते हैं, अभी जो मुझे अभी तक मालूम है, हमारे यहाँ इसको मानते हैं कि हम, हाँ, डोमेस्टिक मार्केट जो था इंडियन कंस्ट्रक्शन मार्केट का, वो USD 884 बिलियन था 23 में, और 2030 तक, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है हमारे कंट्री में इस वक्त, इंडिया का भी मिला लें, फॉरेन का मिला लें, जो मर्जी करके 2100 बिलियन प्लस हम 5 साल में उम्मीद करते हैं इतनी ग्रोथ होगी, क्योंकि हमारे यहाँ रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और नाना क्या क्या बन रही हैं चीजें, तो ग्रोथ तो है, और पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ कंस्ट्रक्शन और घर तो चाहिए जी सब जगह। तो आइडिया इज कि ये तो ग्रोथ वाली इंडस्ट्री तो हमेशा ही है, एटलीस्ट फॉर आवर कंट्री ये हमेशा ग्रो करेगा। तो अपने देश से कितने कंपनियां आ रही हैं अपने देश इंडिया की? लगभग 250 कंपनियां आ रही हैं जी अभी। तो एक्चुअली क्या होता है जी, फर्स्ट टाइम में आप लोग अगर मदद करेंगे तो नेक्स्ट टाइम उठ के यही 700 कंपनियां आ जाएंगी, पक्की बात है। कारण हम भी मेहनत कर रहे हैं, मिल बैठ के जब चलेंगे और अच्छा प्रमोट होगा इवेंट, फॉरेनर्स भी आएंगे, डोमेस्टिक भी आएंगे, दुनिया आएगी, तो अपने आप ये इवेंट बढ़ता चला जाएगा। कभी ऑटो एक्सपो छोटे से शुरू हुआ था, आज आपको बोलने की मुझे झूठ नहीं है, आपको मालूम है सारा। तो ये सब चीजें ऐसी ही होती हैं। So my question is, one thing, Capexcel, who are the members? Who are your members? Like suppose you have Dalmia Cement, so we don't have JK Cement here, we don't have Raj Marbles, you know, and we don't have Syntex. So I just wanted to understand the total, how is it structured? The Capexcel and the Vibrant Buildcon. So do we have parallel membership? And then, like Prime Minister is saying that the people who are exporting, right? So they're giving employment. So how much are you contributing towards the GDP, which is vision for 2047? ओके, इस पे जीडीपी का कोई आइडिया? विशाल Yes. So sir, first answering your question about the structure. So Capexcel is, it's a tripartite, it's a consortium between Capexcel, the association and Vibrant Buildcon. So Vibrant Buildcon is the brand of the exhibition. The exhibition is called Vibrant Buildcon. From the government side, we have the support from Capexcel. So Capexcel is helping us with all the international buyers invitation, for the government support, for all the coordination, all the guidance. That is the role of Capexcel. Capexcel is a membership-based organization. So the members of Capexcel are all manufacturers, exporters, traders who are in the building construction materials. They have multiple panels. So all this ceramic industry, sanitary ware, all this cement, glass, paints, all these sectors, those people who are manufacturers, those people who are exporters, traders, they become a member of Capexcel.
So in the Vibrant Bilcon, everybody can exhibit. Like Sir said, we also have members from other export promotion councils, like Engineering Export Promotion Council, which handles hardware. So even hardware companies are manufacturing. Answering your question about Dalmia Cement, so you know, the names that you see, they are our proud sponsors. So their names are there, but there are other companies also apart from that who are also participating in the exhibition. They are exhibiting their products. About the exports and contribution to the GDP, the contribution of building material sector is more than 12%. As we speak today in the GDP. And the good part is we are growing parallel with the global standards. So the contribution of construction material industry in India's GDP is almost same as the contribution of building material industry in the global trade. Right. And the growth rate of India is much faster. So eventually, like Sir said, in 5 years we see a very high growth, both in terms of speed and in terms of volume. Right. And what about CBRI? Is there also exhibiting? Central Building Research Institute? Central Building Research, which is at So Mathura. government organizations are not exhibiting, Okay. but there are several government organizations that are supporting us. Yes, sir. So like for example CPWD. Right. So CPWD, there are a lot of Indian manufacturers who want to work with CPWD, but MSME especially, they have the capability, they have the best of the products that they can supply and sell. But many companies, they don't know how to reach to CPWD, how to do the vendor registration, how to be a supplier to CPWD. So then through Capex Hill, through government channel, CPWD is creating awareness that how MSMEs can empanel, how they can become a vendor, how they can supply. So those things will also accelerate through these kind of platforms. And also MES? Also the military, MES, Military Engineering Services. Military Engineering, no? MES, which is for the defense construction. MES. So is that also on the, are they also? I did, but they have not involved themselves this time. But They have to be because you have to have a total umbrella, for that. We are planning on next edition, we can build together. Complete. And which are the countries which you are exporting to and which are not there at the moment? Which countries? Can you name them? Africa and which other countries? Bahamas, as I told you. For example, Central America, if you see, You're going. we are going. We also did a lot of promotion. We also did a lot of road shows during the course of the year. We went there to invite delegations. We are having delegations from multiple countries. And like Nilesh Bhai also suggested, many countries and many specific buyers that we've selected and invited are those people who are buying from our competitors, sector-wise. So for example, for ceramic, one of our major competitors is Europe. So we have targeted those buyers which are currently buying from Europe. So when they come here, we will have a new export opportunity. So likewise, buyers buying from China, buyers buying from the Middle East, we are inviting those buyers. So we have buyers coming in from 70 plus countries. So there are many new countries being added, new markets being opened up, and also at the same time we are scaling up markets in the places where we are already present. And does UAE buy from India? Big one, very big. How much is that? How much is that chunk? So sir, it will be, we have multiple products. So for example, for ceramic, it is a very high volume because ceramic we are very competitive in terms of ceramic tiles. And because of logistic advantages, because of the proximity, there is a huge volume. Certain products like hardware which are very popular. There are a lot of other factors like the plumbing standards, the construction standards. So the numbers vary. But UAE in general is a very big market for construction. साइज क्या है? You can carry this booklet. These are All the numbers are mentioned in there. Right. all the numbers are there, countries are there, and you will have an idea as to where India stands today as far as capacitive products are concerned. Of course, say there are other export promotion council products which really would be exhibited. Say some are being exhibited this time, but next time onward there will be many more coming in, and likewise. So it will be a sort of Mahakumbh, as Nilesh Bhai mentioned, in the long run on construction industry or infrastructure industry. So this is the whole idea behind it. And the idea was mooted by our government only. Yes. That there should be one nation, one expo. So this is what we are going to do. And तो ये जो इतना बड़ा
मतलब पोटेंशियल मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो आप एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको क्वालिटी को कौन देखता है? क्योंकि हमारा देश में जो डोमेस्टिक मार्केट में जितने सब सब स्टैंडर्ड वो सब सीमेंट मिलता है, तो वो सब चीज़ मिल जाते हैं, तो उसको वो कौन चेकअप करता है सो दैट एक्सपोर्ट मार्केट खराब ना हो? बहुत आपका क्वेश्चन जो है वो, हालांकि अभी थोड़े समय पहले ही भारत सरकार ने हर एक प्रोडक्ट पे BIS मार्क कंपल्सरी किया है। ठीक हर है। एक सेक्टर में वो ऐड करते जा रहे हैं। आज मैं एग्जांपल दूं, सपोज एज एग्जांपल सिरामिक इंडस्ट्री, हम लोग पूरा मोरबी से आप देखेंगे तो US हो, यूरोप हो, इवन चाइना, कोई दुनिया की ऐसी कंट्री नहीं है, वो दुनिया की कोई ब्रांड ऐसी नहीं है जो आज मोरबी में नहीं बन रही है। मतलब अगर क्वालिटी नहीं होगा तो यूरोप जाएगा नहीं, क्वालिटी नहीं होगा तो अमेरिका या ऐसे कंट्री में नहीं जाएगा। हो सकता है हम अफ्रीका या कोई सस्ता मार्केट वो कवर कर सकते हैं। आज इंडिया की कोई भी प्रोडक्ट, आज हम उठ के अगर बात करें और थोड़ा ज्यादा सोचते, तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर ये ताकत है कि वो दुनिया का मार्केट कर सके और दुनिया का कोई भी क्वालिटी वो इंडिया मैच कर सके। आज मोबाइल भी इंडिया में बन रहा है, तो कोई ऐसा इंडिया की या हमारे इंडस्ट्री की वो ताकत नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हम कहीं पीछे नहीं है, लेकिन हमारा कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। रीजन ये हो सकता है कि सपोज एज ए एग्जांपल, सिरेमिक सैनिटरी वेयर के अंदर जो टॉयलेट होता है उसका आउटलेट का डिस्टेंस जो है वो US का अलग है, इंडिया का अलग है। प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो इंडिया का हम पूरी दुनिया को मैच कर सकते हैं, लेकिन US में पर्टिकुलर उसका जो कनेक्टिंग स्टैंडर्ड होता है वो अलग होता है। तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको वो प्रोडक्ट का मोल्ड करना पड़ेगा और कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो यही ये एक्सपो के अंदर या हम कभी भी कहीं जाते हैं तो वही सीखना होता है कि उस कंट्री का स्टैंडर्ड क्या है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हम कनेक्टिंग डायमेंशन मैच करें। तो जैसे हमारा कोई ऑटोमोबाइल्स में हम बात करें कि कोई कार हमें एक्सपोर्ट करना है, तो हमारा जो डाइंग साइड है वो और अलग कंट्री का डाइंग साइड अलग हो सकता है। अगर वो कंट्री में हमको एक्सपोर्ट करना है तो हमारा जो स्टीयरिंग है और वो चेंज करना पड़ेगा। तो सेम कोई टेक्निकल प्रोडक्ट है उसमें वो चेंज करना है। बाकी जहाँ तक मैंने आज तक पिछले 15 साल से हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं एज अ ट्रेड, एज अ क्लस्टर को डेवलपमेंट करने के लिए, तो ये हमारी इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है, ये भी रीजन है कि हम पूरे सेक्टर को साथ में लेके जा रहे हैं। आज सिरेमिक इंडस्ट्रीज ने पूरी दुनिया में मार्केट किया, तो हमारा जो प्रोसेस बनाने वाले हैं, हमारे दूसरी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, तो उसका प्रोडक्ट क्वालिटी तो अच्छा है ही, लेकिन कोई इंटरनेशनल एग्जीबिशन नहीं है जो ऐसा इंडिया में जो इंटरनेशनल बायर को लेके आए। तो एक ही जगह में आज कोई भी आप दुकान में जाएंगे तो टाइल्स बेचता होगा, वो सीधा दूसरी प्रोडक्ट भी बाथरूम की और बिल्डिंग मटेरियल की बेचता होगा। तो वही बायर जब इंडिया में आएगा तो दूसरी प्रोडक्ट भी देखेगा। हो सकता है 80% मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट वो हिसाब से बनाते होंगे, लेकिन जब कनेक्शन होंगे, जब मिलेंगे, तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से जब इंक्वायरी करेंगे तो हो सकता है 2-3 महीने में वो प्रोडक्ट बना के भी वो एक्सपोर्ट कर पाए। तो आइडिया यही है कि पूरी दुनिया की मार्केट की जो ताकत इंडिया में है सप्लाई करने की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन नहीं बना है। हमने को भी आज छोटे MSME लोग वो फोकस नहीं कर रहे इंटरनेशनल मार्केट में, उसके पास बजट नहीं है। तो ये ऐसा माध्यम है जहाँ पे इंटरनेशनल बायर सामने से आएगा और पूरी दुनिया के मार्केट में वो जा सकते। थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू बाय। एक सवाल मेरा है आपसे। बोलिए है उससे बिल्डिंग मटेरियल कितना प्रभावित होगा? सर, आज ये हमारा कंट्री का सबसे बड़ा चैलेंज वाला मतलब ये सब्जेक्ट है पूरी दुनिया के लिए। तो मैं चाहता हूँ ये रिकॉर्ड करना, काफी सब्जेक्ट में ऐसी बात करूंगा जो थोड़ा हमारे लिए ये हो सकता है। हमारे पास सिरेमिक बिल्डिंग मटेरियल और सिरेमिक के अंदर और बाकी जो सेक्टर बिल्डिंग मटेरियल्स के है उसमें मैं मानता हूँ कि हमारे ज्यादा कंपेटिटर कोई ऐसा नहीं है कि कंपेटिटर कौन है, चाइना है, तो चाइना हमसे भी ज्यादा ड्यूटी लगेगा। दूसरा है कि जो हमारे कंपेटिटर
ब्राजील में ड्यूटी कम है लेकिन मार्केट भी आज हमारा प्रोडक्ट उससे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारी क्वालिटी उससे भी बेटर है। तो काफी प्रोडक्ट ऐसे जो हमारे कॉम्पिटिटर है जहाँ पे ड्यूटी कम लगा है लेकिन आज की तारीख में हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं